ماہ محرم الحرام کا آغاز اور سورہ کوثر کا بابرکت عمل آج ماہ محرم الحرام کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ تمام اہلستان اسلام اور مسلمانوں کو نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ محرم کا چاند ظاہر ہوتے ہی سورۃ کوثر کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھے گا، وہ بہت جل غنی اور بفضل خدا مالا مال ارب پتی ہو جائے گا۔ لوگ سالہ سال یعنی ہر سال اس بابرکت سورہ مبارکہ کا وظیفہ کرتے ہیں، جس برکت سے پورے سال کے لیے ان کے گھر کو مال و دولت اور برکتوں سے بھر دیا جاتا ہے۔ بے شک اس عمل کو ایک مرتبہ خلوص سے دل سے آزما کر دیکھ لیں، یہ ایسا سنہری موقع ہے جو بار بار نہیں ملتا۔ یہ فضیلت سال میں صرف ایک ہی بار حاصل ہوتی ہے۔ آج وہ مبارک لمحات اور وہ عظیم موقع آ چکا ہے کہ آپ سورہ کوثر کا یہ عمل کر کے اس سورت کو اس مخصوص ترتیب کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جب کچھ بھی مانگیں گے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہر صاحب ایمان جانتا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کتنی عظمت، شان اور رفعت والا ہے۔ جس کو اس مہینے کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو گیا وہ اس کی قدر کرتا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا ثواب و اجر بڑھا دیتا ہے، اور اس میں مانگی ہوئی دعائیں پھر رد نہیں ہوتے۔ اس مہینے کا ایک تقدس یہ بھی ہے کہ اس میں واقعہ کربلا رونما ہوا، جو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ اور عظیم ترین سانحہ ہے۔ اس لیے آپ نے اس مہینے اور نئے سال کا آغاز کیسے کرنا ہے، یہ ترتیب جس نے سمجھ لی وہ کامیاب ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غربت و تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے اعمال اور وظائف پڑھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی خاص طور پر اس دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں کہیں فائدہ نہ ہوا ہو، ہم فقط اس ماہ کے شروع میں یعنی نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتے ہی چاند رات میں جب سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اس کی 3 آیات کی برکت سے ہماری 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے اور 300 حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اب آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سکتی ہے، چاہے بے اولادی کا مسئلہ ہو، اولاد کی نافرمانی کا معاملہ ہو، روزگار کی تنگی ہو، غربت و افلاس کا مسئلہ ہو، یا ذاتی گھر اور ذاتی کاروبار کا خواب ہو، دنیا کا کوئی بھی جائز مسئلہ آپ کو درپیش ہو، بس اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ عبرت آموز واقعات اور دعا کی طاقت، واقعہ کربلا کی عظیم قربانیاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ محرم الحرام کی تاریخ، اس کے واقعات اور اس کے شب و روز ہمیں اپنے اندر بہت سے عبرت آموز اسباق فراہم کرتے ہیں، جیسے کہ تاریخ میں دیگر انبیاء کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے، سمندر میں سفر کے دوران قرع اندازی ہوئی اور آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مگر مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں بھی آپ مسلسل یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کن من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور فریاد کو قبول فرمایا اور انہیں اس عظیم مثبت سے نجات عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہی اہم بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے اب میں بغیر تاخیر کے اصل عمل کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ ماہ محرم کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں یہ اتنی شان اور عظمت والے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ جس نے اس وقت کی قیمت کو جان لیا اور اسے قیمتی سمجھ کر عبادت میں گزارا، وہ سمجھو کہ دارین کی کامیابیاں حاصل کر لے گا، اور جس نے غفلت، سستی اور لاپرواہی میں ان لمحات کو گزار دیا وہ بہت بڑی برکتوں اور رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بالکل واضح طور پر چند چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ عمل انتہائی شاندار ہے۔ جس نے اس کو اس بتائی گئی ترتیب کے ساتھ سمجھ لیا اس کا بیڑا پار ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات، ایک ایک جز اور ایک ایک حصہ انتہائی شاندار اور قیمتی ہے۔ اب آپ نے ذرا اس بات کو بڑی توجہ، یکسوئی اور دھیان کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب آپ ان کو پڑھتے ہیں چھم چھم اس بندے کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے وہ الحمدللہ مالا مال ہوا ہے۔ عمل کی مکمل اور تفصیلی ترتیب، آپ نے پڑھنے کی ترتیب اور طریقہ کار کو غور سے سمجھنا ہوگا۔ عمل کا آغاز کچھ اس ترتیب کے ساتھ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ نے شیاطین کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنا ہے۔ مرحلہ یا تعوذ، پہلے آپ نے 3 مرتبہ پوری توجہ کے ساتھ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ترجمہ: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کو آپ نے بتائی گئی تعداد کے مطابق فقط 3 بار پڑھنا ہے۔ میرے سمجھانے اور بتانے کا مقصد بالکل سادہ سا ہے۔ جب آپ اس ترتیب کے ساتھ تعوذ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی برکت یہ ملتی ہے کہ شیطان آپ کے عمل کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس سے شیطانی وسوسوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، غصے کا خاتمہ ہوتا ہے، اور دل میں آنے والے برے خیالات اور خوف کو دور کرنے کے لیے یہ انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔
अक्सर लोग कहते हैं कि हम आमाल और वज़ाइफ के अंदर नाकाम हो जाते हैं। उनकी नाकामी की एक बड़ी वजह यही है कि उन्हें दौरान वजीफ़ा शैतानी ख़यालात और वसूसे आते हैं। तो जब आप तावुज़ूद के ज़रिए अपनी हिफाजत कर लेंगे और अल्लाह की पनाह में चले जाएंगे, फिर आपको आपके अमल के अंदर कोई भी नाकाम नहीं कर सकता। तलावत कलाम पाक से कबल भी इसको पढ़ने का हुक्म मिला है, जो शैतानी मुदाखलत को दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी अच्छे और जायज़ काम के आगाज़ में उसे पढ़ना गुनाहों से बचाता है और उसमें कामयाबी के रास्ते हमवार करता है। मरहला 2, तस्मिया बिस्मिल्लाह। जब आप ताउज़ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 10 दली मुर्तबा तस्मिया पढ़ना है। ये भी कुरान करीम की एक मुस्तकिल आयत मुक़द्दसा है, जिसके अंदर बेशुमार राज पोशीदा हैं। इंसान की फलाह इसी एक कलमे और दुआ में पोशीदा है कि वो हर वक्त अल्लाह की पनाह है। जब भी कोई अमल करे तो शैतान से बचता रहे। जैसा कि हज़रत मुआक़िल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त मुकर्ररा कलमा 3 मुर्तबा पढ़े तो अल्लाह ताला उसके लिए 70,000 नूरी मलाइका फ़रिश्ते मुकर्रर कर देता है, जो शाम तक उसके लिए इस्तिग़फ़ार और दुआ करते हैं। और अगर वो इस दिन मर जाए तो शहीद बनकर उठेगा, और जो शाम को पढ़े उसको भी यही मर्तबा मिलेगा। तस्मिया पढ़ने से इंसान का खालिक के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो जाता है और हर हाल में उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी ज़रूरी है। तावुज़ और तस्मिया का ये अमल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब अंबिया इकराम का शेवा रहा है। इसलिए हमने इसको एक ख़ास तरतीब से पढ़ना है जो अल्लाह वालों ने बताई है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, बल्कि हर मुसीबत और आफत की बुनियाद है। वो हर वक्त इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है। शैतानी शर और उसके चीलों से तहफ़्फ़ुज़ अल्लाह ताला की पनाह से ही हासिल होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शयातीन के शर से बचाव के लिए बाकायदा सूरातें नाज़िल फरमाई हैं। जो लोग इखलास के साथ अल्लाह की पनाह हासिल करते हैं और इसी पर तोकल करते हैं, शैतान अपने किसी हथकंडे से उन पर गालिब नहीं आ सकता। इसलिए आपने तस्मिया को 10 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मरहला 3, दुरूदी पाक। तस्मिया पढ़ने के फ़ौरन बाद आपने दुरूदी पाक पढ़ना है। दुरूदी पाक की तादाद बड़ी सादा सी है। आपने इस मुबारक महीने के पहले 10 दिनों की निस्बत से 10 मरतबा दुरूदी पाक पढ़ना है। और कौन सा दुरूदी पाक पढ़ना है, ये बात भी वाज़ेह करता चलूँ कि आप दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़िक्र जमील मौजूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अली आल इब्राहीम इन्नका हमीद मजीदुन। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल व औलाद का ज़िक्र इसलिए भी अहम है कि इस महीने के अंदर हुज़ूर की आल के साथ जो कुछ किया गया वो हम सब के सामने है। वाक़या करबला तंग इस कदर जुल्म व सतम ढाया गया और इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, आपके अहल खाना, असहाब और साथियों को शहीद किया गया। इसलिए दोस्तों, जब हम इस पाक हस्तियों पर दरूद भेजकर इस तरतीब से वजीफ़ा पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमें वो अनवार व तजलियात नसीब होते हैं कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका और आले रसूल के वसीले की बरकत से वो सब कुछ मिल जाता है। मरहला तौर कलमा तैयबा का वर्द। अब जो कलमात आपने पढ़ने हैं वो कलमा तैयबा है और ये सबसे अफजल तरीन जिक्र है, जैसा कि हदीस मुबारका में भी आया है। अफदलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफदलुद दुआ अल इस्तिग़फ़ार। तर्जमा, सबसे अफजल जिक्र ला अल्लाह अल्लाह है। ये वो अजीम कलमा है जो हर नबी ने पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स की आखिरी गुफ्तगू या आखिरी कलमात ये होंगे, इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये कलमा गुनाहों और ख़ताओं को ऐसे मिटा देता है जैसे रात का अजाला अंधेरे को ख़त्म कर देता है, और खलूस दिल से उसका वर्द गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनता है। क़यामत के दिन शफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी शफ़ात का सबसे ज़्यादा हक़दार वो शख्स होगा जिसने खलूस दिल से इस कलमे का वर्द किया होगा। इस कलमे का कसरत से वर्द दिल के जंग को दूर करता है और ईमान को ताजगी बख्शता है। मेरे आका ने इसके बारे में अरशाद फरमाया कि जो कोई इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी नेकियां लिखता है, इसके गुनाह मिटाता है और इसके दर्जात बुलंद फरमाता है। इसे गुलाम आज़ाद करने के बराबर अजर मिलता है और बंदा शैतान और हर नुकसान व मुसीबत से महफूज रहता है। रिवायात में आता है कि जिस शख्स ने 70,000 मरतबा इसको पढ़ा, अल्लाह पाक इसकी मग़फ़रत फरमा देता है और जिसके लिए पढ़ा जाए उसकी भी मग़फ़रत हो जाती है। आपने इस मौका को ज़ाया नहीं करना। 100 दानों वाली तस्बीह ले लें और इसके ऊपर 100 मरतबा इस तरह पढ़ना है कि 99 निदनी मरतबा आपने कहना है
ला इल्ला इल्लल्लाह, और जब 100वें मर्तबा बारी आएगी यानी तस्बीह मुकम्मल होने पर, तब आपने पूरा कलमा इस तरह पढ़ना है, ला इल्लाह इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरतीब के साथ आपने ये जिक्र मुकम्मल करना है ताकि इस अमल की शान, अज़मत और ताकत का अंदाज़ा हो सके और आपको मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला का करम कैसे बरसता है। जिसने आज तक अलही अनवार व तजलियात का मुशाहिदा नहीं किया, वो आज ज़रूर देखेगा कि उसके अनवार किस कदर बंदों पर बरसते हैं, कैसे जन्नत के ख़जाने नसीब होते हैं और किस तरह दुनिया व आखिरत सुनूरती है। मरहला फाइंस हौकला ला हौल वला को अब कुवा अजीम आपकी तवज्जो कराना चाह रहा हूँ। ये वो कलमा है जिसका मतलब है गुनाहों से बचने की ताकत और नेक आमाल करने की कुव्वत सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है। ये कलमा तोकल की आला तरीन मिसाल और बेशुमार बरक़ात का हामिल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कलमे को जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना करार दिया है। ये कलमा 99 बीमारियों की शफा है, जिनमें सबसे मामूली बीमारी रंजोगम, फ़िक्र और डिप्रेशन का खात्मा है। इस जिक्र की कसरत से अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल रहती है और ये ख़ताओं को मिटाने का सबब बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस कलमे का वर्द करने वाले के लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। इस कलमे को दिन भर कसरत से पढ़ना और ख़ास तौर पर अजान के जवाब में जब मोज़िन हई अलैहिस्सलावत और हई अलैहिल फलाह कहे तो इसके जवाब में ये पढ़ना इंतहाई मुस्तहब और बाइस अजर व सवाब है। तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जब ये कलमा किसी सहाबी रसूल को बताया गया और उन्होंने पढ़ा तो अल्लाह ताला ने उन पर ऐसा करम किया कि उनकी तंगी दूर हो गई। इस जुमले की बरकत यह है कि इंसान एतराफ़ करता है कि अल्लाह के मुकाबले में हर ताकतवर कमज़ोर है और हर अजीम शख्स इसकी कुदरत के सामने मामूली है। अहादीस में आता है कि जब भी कोई बंदा ये कलमा पढ़ता है तो हर मर्तबा आसमान से एक फ़रिश्ता दुनिया में नज़ूल करता है। ये फ़रिश्ता बीमारों को शफा देने और पढ़ने वाले को सेहत वो आफ़ियत अता करने के लिए नाजिल होता है। ये कलमात में सबको ज़बानी याद हैं, लेकिन वो शैतान मरदूद उसे पढ़ने नहीं देता क्योंकि वो इंसान की रूह और रगों में खून की तरह दौड़ता है। आपको हिम्मत करनी होगी। शैतान आपको रोकेगा और दिल में वसूसा डालेगा कि इस अमल से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपने उसका मुकाबला करते हुए उन कलमात को पढ़ना है क्योंकि ये सतर बलाओं से आफ़ियत का ज़रिया है। जो बंदा इस वर्द को करता है अल्लाह ताला इस पर मोहताजी के दरवाजे बंद कर देता है। आपने इस कलमे को 41 मरतबा पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मरहला सा सूरह फातिहा की आखिरी आयत का जज़। अब उसके बाद आगे जो कलमात आपने पढ़ने हैं उन्हें ज़रा गौर से समझें। ये एक मुकम्मल वजीफ़ा और जामे अमल है जिसे वही शख्स सही मानों में कर पाएगा जो उसकी रूह को समझेगा। जो लोग दरमियान से चीज़ें छोड़ देते हैं वो इसकी असल तासीर से महरूम रह जाते हैं और फिर सवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर शुरू में अमल को समझने में 2 मिनट ज़्यादा भी लग जाएं तो वो आपके काम आएंगे। अगर आपने अमल दुरुस्त तरीके से ना किया तो पूरा साल सोचते रहेंगे कि अमल भी किया था मगर फ़ायदा ना हुआ। फ़ायदा इसी को होगा जो पूरी तरतीब और समझदारी के साथ करेगा। नए इस्लामी साल के आगाज़ और चांद रात में हमारी खुसूसी दुआ होती है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए इस साल को खैर व आफ़ियत वाला बना दे। अब जो कलमा में आपको बताने लगा हूँ ये कुरान करीम की एक अहम तरीन आयत मुक़द्दसा का हिस्सा है। जो शख्स सच्चे और सदीक दिल से ये कलमात पढ़ता है उसके नामा आमाल में 30 नेकियां लिखी जाती हैं और 30 गुनाह माफ़ होते हैं। ये तो आम दिनों की बात है, तो जब आप मुहर्रमुल हराम के आगाज़ में उसे पढ़ेंगे जहाँ नेकियों का अजर पहले ही बढ़ा दिया जाता है तो आप पर कितनी रहमतें, इनामात और नियमतें नाजिल होंगी इसका तसव्वुर ना मैं कर सकता हूँ ना ही आप। जब बंदे पर ये फ़ज़ाइल उतरते हैं तभी उसे अंदाज़ा होता है। मसाइब मुश्किल आजमाइश के वक्त जब कोई बंदा ये कलमा पढ़ता है तो दिल को सुकून मिल जाता है, गम ख़त्म हो जाते हैं और बंदा अल्लाह की ख़ास रहमत का मुस्तहिक बन जाता है। रिवायात में है कि जो बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो ये जिक्र उर्श अल्लाही के गर्द तवाफ़ करता रहता है और पढ़ने वाले का जिक्र हुजूर हक में बुलंद होता रहता है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन के वार से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार उठा लो। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या दुश्मन ने हमला कर दिया है? आपने फरमाया, नहीं, बल्कि जहन्नम के मुकाबले में अपनी ढाल उठा लो। और वो ढाल ये कलमात हैं जो क़यामत के दिन आगे और पीछे से आपकी हिफाजत करेंगे। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कलमा मीज़ान एमाल तोलने तराजू को भर देता है। आपने ये मुबारक कलमा 37 मरतबा पढ़ना है जो कि सैयदा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के तसल्लियाती
वज़ाइफ की मरोजा तादाद से मुनासबत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत सलीमान अलैहिस्सलाम को ऐसी हिकमत और हुकूमत अता फरमाई जो दुनिया में किसी और को नसीब ना हुई। हुआ जिनात, परिंदे और बेशुमार मखलूक़ात उनके ताबे थीं और उन्होंने भी खुदा का शुक्र इसी कलमे से अदा किया। असल इज़्ज़त और इक़्तिदार अल्लाह ही के हाथ में है, वो जिसके लिए चाहता है और अता फरमाता है। यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें आसमान पर उठा लिया। अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। आप ग़ज़वा खैबर को देख लें या दीगर इस्लामी वाक़यात को। मुहर्रमुल हराम वो अहम तरीन महीना है जो इन 4 महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हिरमत वाले महीने करार दिया है। इस महीने में हर तरह के गुनाह से बचने का हुक्म है ताकि आप अल्लाह के मुक़र्रब बन जाएं, और जिसको अल्लाह का क़ुर्ब मिल गया इसने दोनों जहान की कामयाबियां समेट लें। मरहला 7 इस्माए इलाही का वर्द। ये 2 मुबारक इस्माए इलाही की तस्बीह है। आपने अल्लाह ताला के उन 2 नामों को मिलाकर पढ़ना है। ये दोनों नाम रिज़्क़, कशादगी और कामयाबी के बंद दरवाजे खोलने के लिए तैरबे हदफ हैं। या फ़तह या रज़्ज़ाक़ तर्जुमा, ए बंद रास्ते खोलने वाले, ए रिज़्क़ देने वाले। इन कलमात का मतलब ही यही है कि एक ज़ात रास्ते खोलती है और दूसरी रिज़्क़ देती है। इसके ज़रिए अल्लाह ताला हर किस्म की बंदिश को खोल देंगे। हर रुकावट ख़त्म हो जाएगी, चाहे औलाद का मसला हो, रिश्तों की बंदिश हो, कारोबार की तंगी हो या कोई गम मुसीबत हो। पढ़ते वक्त दिल में ये तसव्वुर रखें कि मेरा मालिक मेरे लिए कामयाबी और रिज़्क़ के तमाम बंद दरवाजे खोल रहा है। इन दोनों नामों को मिलाकर आपने 37 मरतबा पढ़ना है। मरहला 8 सूरह कौसर की तलावत असल और आखिरी अमल इस्माए इलाही के बाद। अब बारी आती है इस वजीफे के मरकजी अमल की, यानी सूरह कौसर की। ये सूरत नजात के रास्ते हमवार करती है, हिसाब में आसानी लाती है और जन्नत की खुशखबरी का बाइस बनती है। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है इसके रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आती है, तंगी खत्म होती है और मोहताजी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस सूरत के अंदर कुर्बानी का जिक्र है और खैर कसीर, बहुत ज्यादा भलाई का मुद्दा है। ये सूरत हमें बताती है कि इस्लाम के दुश्मन हमेशा जलीलो रुस्वा होंगे और हक हमेशा गालिब रहेगा। कुर्बानी तकवा की अलामत है और अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानी कभी जाया नहीं होती। वक्त की कुर्बानी हो या माल की, उस सूरत में न खत्म होने वाली भलाई और नियामतों का जिक्र है। आपने आगाज में एक बार तस्मिया बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद बगैर बशनल्लाह के या बिस्मिल्लाह के साथ उस सूरत को मजमूई तौर पर 37 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर वा फसल रब्बिका वानहर लो फसल इन्ना शानियक हुवल अब्तरू। इख्तितामी दुआ का तरीक़ाकार, जब आप सूरह कौसर तलावत कर लें तो उसके बाद आखिर में दोबारा 10 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ें ताकि वजीफे की अव्वल व आखिर दोनों जानिब दरूद पाक का हिसार कायम हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ने के फौरन बाद आपने अपने दोनों हाथ अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए उठाने हैं। दुआ मांगने का तरीका कार ये होगा कि आप बारगाह इलाही में अर्ज करें, ए मेरे माल को माबूद, मैंने जो ये पूरा अमल और जिक्र किया है इसका सवाब में शहदाए करबला बिलखुसूस इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और उनके जानसार साथियों की अरवाह तीबा को हदिया पेश करता हूँ, ए अल्लाह। तो उसके बाद इन पाक फोसस्तियों के वसीले से और इस मुबारक महीने के तक़द्दुस के सदक़े 3 मरतबा अपनी इस खास हाजत या मसले का जिक्र करें जिसके लिए आपने ये अमल किया है। ताला से गड़गड़ा कर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस तरतीब से अमल करने से आपकी रूहानी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होगा। आपको अमल के अंदर कामिल कामयाबी मिलेगी। साल भर के लिए जिंदगी में सुकून व इत्मीनान आएगा और अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत की तमाम नामतों से मालामाल फरमा देगा।